part of SARP, which is an NGO which is Yes. spreading awareness on reptiles and rehabilitation program. He has been in this noble cause for quite some time. And 12 years. yes, I'm sorry. for the last 12 years. And we have been having him as a speaker at our college for the last 4 years. And I would not be wrong if I said our students have thoroughly enjoyed the lecture. They have learned a lot because snakes, reptiles, animals are definitely not our world. But these are men who actually go and save them, do a lot of work that we would otherwise be very scared of. They have been involved in rescue operations, not just in Mumbai, but beyond Mumbai. Not taking much of your time. I'm sure the session is going to be an eye opener. I request Mr. Bhagesh to kindly take over. Welcome, sir. Yeah. Good morning, people, and good afternoon. Okay. So let's start with the lecture. So can you see the presentation? Can you see the photo which says Mega Awareness Drive? Okay. This was done in 2018. What we were doing is our NGO was going in colleges and schools and every construction site. We were just awareing people on snakes. So this PPT is from those days. So can you please change? So guys, this snake which you can see over here, it's called a rat snake. Okay, and how to identify it's a rat snake? Can you see the eyes? If you see the eyes of the snake, those are big ones. And if you see the body of the body of the snake is like much more healthier than the head. जो snake का head होता है वो छोटा होता है और जो body होती है वो ज़्यादा मोटी होती है. This is the structure of the snake exactly. If you see the eyes, you will find stripes over there. Can you see the four stripes over there under the eyes? This is the identification of this rat snake. And second thing, why this snake is called a rat snake? Anyone has any kind of idea regarding this? Can unmute and answer. Any knowledge about it? Is there anyone there who can tell anything about this? Why the snake is called rat snake? सर शायद ये स्नेक्स खेत में खेत में होते हैं ज्यादा, तो वो रैट्स खाते हैं. खेत में नहीं है तो हमारे यहाँ पे भी बहुत कॉमन है बट गुड एटलीस्ट यू आंसर समथिंग एंड और कुछ रीजन रैट तो हर एक सांप खाता है They feed on rodents. एवरी स्नेक फीड्स ऑन rodent any more reason any more answers the nocturnal snakes are nocturnal They are yes they are what go ahead nocturnal. snakes are nocturnal nocturnal means what nocturnal and the name rat snake it has a total different term nocturnal means the species which are active mostly active during the night time and feed and hunt during the night time so nocturnal is totally different term okay so let me tell you okay the reason why the snake is called a rat snake is because just a minute yeah so the reason why the snake is called a rat snake is because this snake can eat more rats than other snakes जो रैट स्नेक होता है ठीक है वो एक टाइम पे एक अडल्ट रैट स्नेक एक टाइम पे 6 से 7 बड़े बड़े गूस खा सकता है एक अडल्ट रैट स्नेक दैट इज अप टू 6 to 7 to 8 feet 9 feet okay this kind of rat snake can eat up to 6 to 7 rats big rat जो घूस बोलता है अपन जिसको बड़े बड़े वो एक टाइम पे 6 से 7 खा सकता है 4 से 5 एंड जो नॉर्मल स्नेक्स के लिए बहुत ज्यादा है नॉर्मल स्नेक जैसे कोबरा हो गए एंड अदर स्नेक्स इंक्लूडिंग रसल्स वाइपर एंड ऑल एक चूहा खा लिया एक घूस खा लिया दे आर डन देन इनफ फॉर दैट बट नॉट इन रैट स्नेक इसके लिए बोलते हैं बिकॉज वो ज्यादा दूसरे सांपों के मुकाबले ज्यादा चूहे खा सकता है सेकंड स्लाइड प्लीज एंड यस कैन प्लीज गो बैक या हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स अ रैट स्नेक आई सेड द आईज ठीक है अगर आपको दूर से कोई सांप दिख रहा है आपको उसके सामने आके जाके देखने की जरूरत नहीं है कि अरे ये जहरीला है या नहीं है वाइप रैट स्नेक है या नहीं सेकेंड आइडेंटिफिकेशन इज जब दूर से आप कभी सांप देखोगे ठीक है तो इसके बॉडी आपको बहुत शाइनी दिखेगी बहुत शाइनी ठीक है सेकेंड थिंग इसका हाफ बॉडी जो होता है ना
उसके ऊपर पैटर्न नहीं होता. If you see the body, you won't find the pattern on the first half of the body, okay? And the second half, you will find the pattern like the XY axis. Can you see that? Next slide. I'll go for the common species which are mostly found. Next slide. Okay, so the snake is known as wolf snake, common wolf snake. ठीक है. इसके बारे में, इसको कहीं किसी ने देखा है आजू बाजू अपने घर के आसपास या घर के अंदर? कभी देखा है किसी ने? Have anyone ever encountered with the snake? No? Okay, that's good. At least someone is typing. Good. So this is a wolf snake, and this is also a non-venomous species. जहरीला सांप नहीं है. Even rat check, it was a non-venomous species. जहरीला सांप नहीं था वो. ठीक है. And wolf snake is also a non-venomous species. जहरीला सांप नहीं है. हाँ, बट ये बहुत काटते हैं. ठीक है, काटते हैं. अगर आप इसको रेस्क्यू करने जा रहे हो तो, लेकिन अगर आपने एक बार हाथ में ले लिया, सेकेंड्स में आपको बाइट होंगे, फट 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 काटेंगे. और इसकी खास बात यह है कि दीज आर द बेस्ट वॉल क्लाइंबर्स. दीवार के ऊपर अगर एक सिंगल क्रैक होगा ना, प्लेन दीवार के ऊपर अगर एक सिंगल क्रैक है, then they can climb the whole wall with that crack. Non-venomous species, very much common in Mumbai and all over India. Because this snake is usually found in the house, okay? और ज़्यादा करके बाथरूम में पाया जाता है. बाथरूम में पाया जाने का रीजन इज whenever बाथरूम में पहली बात क्या होता है, बल्ब होता है. ठीक है, बल्ब को, या कॉमन वुल्फ स्नेक flesh is edible? No. Common wolf snake, yeah, wait, let me tell you. So why it is found in mostly bathrooms, okay? मैंने अभी तक जितना रेस्क्यू किया, ज्यादा करके मुझे बाथरूम में मिला. बाथरूम में लगाते हम बल्ब को अट्रैक्ट होके आते हैं फ्लाइज को अट्रैक्ट होके आता है lizards, and lizards को खाने के लिए आते हैं snakes. So this is the whole procedure which is getting followed over here. If you see how to identify, it's a wolf snake, okay? These snakes are in Mumbai, usually they are found in brown in color, okay? If you see the body of the snake, you will find a band on his neck, okay? Wolf snake का band neck से चालू होता है. Second thing, this snake is a non-venomous species, but what people do is people compare these snakes with crates, and crates are highly venomous species. बहुत जहरीले होते हैं crate. And how to identify it's a crate or not? क्रेट का जो पैटर्न होता है वो नेक से चालू नहीं होता, वो उसके आगे से चालू होता है. और जो वुल्फ स्नेक का होता है वो नेक से चालू होता है, बैंच. सेकंड स्लाइड. कुकरी. So this snake is called common kukri, and इसको कुकरी क्यों बोलते हैं? कोई एक आंसर दे सकता है मेरे को? Why the snake is kukri called as common kukri, and what exactly a kukri is? Can please someone unmute and tell me about this? I'm waiting. Any kind of idea about kukri, what exactly a kukri is? Kukri is basically a dagger, right? A knife. Yeah, that's right. And the pattern on the snake that is found is somewhat like that. So might be it is named because of that. No. Okay. Any kind of idea? Like, can you please go bit more in details? Like, thoda sa dimag laga. You are a bit closer with that. No, I'm so sorry. It's okay. Common kukri, I guess, has sharp teeth that That's resembles perfect. a knife. That's perfect. That's perfect. If you see the structure of this knife is known as common kukri. It's a Chinese knife. Yeah, I guess Chinese. I'm not sure about it. So, जो ये कुकरी के दांत का structure होता है, okay, they are like the kukri knife, and they are as sharp as the knife. So that's why the snake is known as common kukri. Even this is a non-venomous species, and mostly the snakes are burrowing snakes. ज़्यादा करके नहीं मिलता, अपने यहाँ पे नहीं मिलता. इन मुंबई में बहुत कम मिलता है, इतने भी नहीं. Can you please go on the next slide, please?
Nepali knife. Okay, thank you. Next slide, sir. Buff strap kill bag. Okay, so what is exactly a keel? Can anyone tell me about it? What exactly is a keel? And why the snake is known as keelback? कील मार्क कभी किसी ने सुना है? कील मार्क? नो. कोई तो मुंह खोलो. Can you please someone go ahead and tell me? कुछ तो बोलो. Even if you are wrong, it won't mind. Okay, it's okay. The base of the ship. That's right. That's perfect. That's perfect. Okay. So if you see the scales, if you zoom into the scales, okay, zoom into the scales, you will find a keel mark like this. Keel mark like this. Okay. So that's the reason why it is called keelback. And the second thing, this snake is a water snake. It's a non-venomous species, and it's a very docile species also. Okay, how to identify? It's a keelback. Can you see buff stripe keelback? If you see the body, okay, you will find the stripes on it, the beautiful stripes on it. Can you see that? And this is a male because if you see his head during the mating time, the head of the snakes turns yellow. It's a non-venomous species, very docile species, a water snake, and I told you the reason why it is called keelback. Next slide. Checkered keelback. Can anyone tell me about why it is called checkered keelback? It's visible. कोई भी बता सकता है. It's very easy. Because it has a checkered structure, black and white. Yeah, like And the kind check structure. If you see his body, you will find a check structure on him. दिख रहा है किसी को? Zoom करके देख लो उसके बॉडी पे. Can you see? Checks जैसे पूरे पैटर्न है उसके बॉडी पे. So that is the reason why this snake is called checkered keelback. Even this is a water snake, non-venomous species. But yeah, these are very aggressive hunters. These are very aggressive hunters. इनके दांत जो होते हैं वो बहुत sharp होता है और बहुत aggressive भी होते हैं ये snakes. These are not docile. I cannot say these are docile snakes. If you see this mark, I don't think so. It will be visible for you. This mark, this is a bite of the snake. यहाँ पे भी है. So it's very common. Okay, it's very common all over India. ठीक है, मुंबई में स्पेशली तो बहुत कॉमन है. बारिश के टाइम पे बहुत मिलता है. चेकर्ड बिकॉज ऑफ द पैटर्न, keelback because of the scales. इसको भी कील होते हैं. इसके भी scales के ऊपर. Yeah, I have got bitten by it many times because these are very aggressive hunters. So it's okay. Next slide. Green keelback. कुछ रीजन कोई बता सकता है इसके बारे में? अभी इसको ग्रीन keelback क्यों बोलते हैं? obviously Because it because is of green in Because color of and green हाँ in हाँ color. हाँ हाँ, अभी सब बोलेंगे, अभी सब बोलेंगे. It's okay. Yeah, so it's because it's green in color. The other name of the snake is grass snake. ठीक है. Second thing, the photo on your left with no patterns on it as it's an adult. Okay, बड़े होने के बाद इनका कलर नॉर्मल हो जाता है कैमोफ्लॉज अच्छे से होने के लिए घास में. And on the right side, it's a juvenile. Can you see the pattern, the beautiful pattern on his body? This is juvenile. That's a baby. तो बड़े होते होते उनका कलर टर्न हो जाता है. उनका जो जो येलो बैंड है एंड देन ब्लैक एंड व्हाइट, इट गेट्स फेडेड. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब इसके बारे में कौन बोलेगा? Because of its structure, स्ट्रक्चर एज इन व्हाट? the wines, the grapevine in case. Grapevine. Right. Which wine? Which wine you are talking maybe about? because The वो वाइन का जो वो रहता है उसके ऊपर पाया जाता है इसके लिए tendrils, you can नाल say. के ऊपर. Which wine you are talking about?
I am Bhabhi. It's okay. Yeah. So I'm you, not you knowing. you are right. You are right. Okay. So if you see the body structure, you will find like a vine, बेल, झाड़ की बेल. ठीक है? You were perfect. This is a semi-venomous species, and if you see the snot, okay, it's pointed. Is it beautiful? No. Come on, this is such a beautiful Yes, snake. yes, This is such a yes. beautiful. This is such a beautiful snake. And second thing is, these snakes are very delicate. Like अगर ये snake है, ठीक है, ये snake है, ये head है. Even if you like अपने से मारा, and it's gonna die. His nose is very longer. Yeah, it's the snot which is longer. The reason why it's long is because it has to look like a leaf. Okay. मतलब झाड़ पे अगर ये रहेगा तो ऐसा लगना चाहिए कि जो इसके प्रीडेटर्स होते हैं तो दे शुड फील लाइक इट्स अ लीफ बिकॉज व्हाट दे डू इज इफ यू सी देम इन द नेचर ओके स्पेसिफिकली इफ यू गो इन माथेरन एंड रात के टाइम पे अगर आप टॉर्च लेके निकलोगे और अगर आप झाड़ पे टॉर्च मारोगे तो आपको दिखेंगे इफ यू सी हाउ दे मूव एग्जैक्टली इज what they do is they will be like this ठीक है ये उनका हेड है बाकी का बॉडी है एंड दे विल लाइक स्टे वो लोग रुके रहेंगे और हल्का हल्का मूव करेंगे जब तक उनको डर नहीं लगता ठीक है और सेकेंड थिंग बहुत काम स्नेक्स है ये बहुत रेयरली बाइट करते हैं आई हैव नॉट नेवर सीन एनीवन बिटन बाय दिस वाइन स्नेक और सेकेंड थिंग सेमी वेनेमस स्पीशीज okay and this is a nocturnal species as in रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं how can you tell the snake is a nocturnal species can anyone give me any kind of idea how to identify if the snake is or if the animal is a nocturnal species or not can anyone tell me about this how to identify अगर आपको कोई जानवर दिखा ठीक है और आपको ये पहचानना है कि वो नॉक्टर्नल है या नहीं है वो रात के टाइम पे एक्टिव रहता है क्या दिन के टाइम पे एक्टिव होता है तो आप कैसे पहचानोगे कुछ एक एक चीज होती है क्या Through their eyes. that's perfect if you see the eyes if you see the eyes you will find a structure like this okay जो nocturnal species में होता है nocturnal species की eyes जो होती है those are like this and not oval like us so we are not nocturnal but I am nocturnal unluckily next slide please beautiful snake is that right अब इसको कैट स्नेक क्यों बोलता है कुछ कोई बता सकता है बिकॉज उसके स्किन जो है वो कैट से रिजेंबल करती है कैट जैसा प्रिंट है किसको Body, hair. hair cat hair hair. It has cat-like snakes. It second looks thing like cat because of hair. second thing eyes are like cat. okay let Eyes me tell are like cat. yeah that's perfect cat eyes that's why the snake is called a cat snake second thing सांपों को बाल नहीं होते snake don't have hair okay जिसने भी बोला इट्स ओके आपका डाउट क्लियर हुआ that's good बट या कीप दिस इन योर माइंड गांव में कभी सुना होगा कि अरे यार मैंने देखा वो बाबा लेके जा रहे थे बूढ़े बाबा लेके जा रहे थे बाल वाला सांप था बहुत जूना सांप है बाल होते हैं उसको सांपों को बाल नहीं होते ठीक है अगर आप लोग ने कभी ऐसा देखा भी होगा ठीक है मैंने देखा स्पेसिफिकली इट वाज अ रेड सैंड बोआ और मैं दोस्त के साथ घूमने गया था यूपी एंड तभी मैंने देखा था वहां पे और स्नेक एग्जैक्टली उसको क्या हुआ था कि जो मदारी लोग होते हैं जो सांप पकड़ के बेचते हैं देन शो करते हैं द मदारीज ओके व्हाट दे डू इज जो ये सांप है ठीक है जो स्केल जो होता है सांप के स्केल्स को लोग टर्न करते हैं वहां पे लोग गम लगाते हैं एंड वहां पे उनको बाल चिटकाते हैं दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस मैंने जो सांप देखा उसके ऐसा आईब्रोज थी उसको मूछें थी सो ये सब फेक होता है असली में सांप को बाल नहीं होता ठीक है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज वाओ दैट्स अ वंडरफुल इंडियन रॉक पाइथन तो ये सब तो देखा ही होगा बहुत सुना होगा इसके बारे में अजगर कभी किसी ने देखा है
नो? यस सर. किधर? एक बंदा लेके आया था. बंदा इट वाज लेके नॉट आया ऑन था? रॉक. एक बंदा लेके आया था हम लोग के यहाँ. यस यस, वो एरिया में लेके घूम रहा था, वो कमा रहा था एक्चुअली इसके ऊपर. Oh, okay. So first of all, whenever you see anyone doing like this, you have to just click a Is that photo. That's wrong. it's that considered a rock python? It's an Indian rock python. The first thing what you have to do whenever you find anyone doing this, like सांप को लेके यहाँ से वहाँ नाच रहा है, it's very wrong. He's putting the snake in Yeah, stress. correct. You should never do that. You have to directly call forest department on 1926 whenever you find anything like this. Okay. And second Sure, thing. sir. And second thing, if you see the body structure of the snake, people usually get confused between a Russell's viper and a Indian rock python. Okay, but both are totally different. Okay, if you see the body structure, the patterns are irregular on the snake. If you see the pattern, it's irregular. It's not in the same alignment or same structure, something like that. No, everything is different. If you see the head, it's totally big, and if you see the eyes, everything is so beautiful in this thing. I just love this thing. I don't know why. And these snakes are usually very huge. Okay. My the last rescue was around a month back, maybe. Yeah, I got in two Indian rock pythons on the same spot. The female was around 9 feet and the male was around 4 feet, which I rescued. So, हाँ, और ये बहुत बेकार बाइट भी करता है. I hope you see the mark over here. It's a recent rescue bite. अभी आप लोग बोलते रहेंगे कि कितना पाक काटता है यार. अरे हो जाता है रेस्क्यू करने का हम. Like when it's a big snake, it's easy to handle, but whenever it is a small snake, वो कब घूमता आपको नहीं समझता और usually bite हो जाता है. Next slide please. इसका बॉडी स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है. रेड सैंड बॉय, दिस वाज अ स्नेक व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसको बाल मैंने देखा है, ठीक है. सो दिस स्नेक इज, आप लोग ने कभी किसी ने सुना है क्या दो मुंडी वाला सांप? Unmute, unmute, unmute and tell, please. No, no, sir. Anyone who can tell me? Okay. तो जिसने भी सुना है कि दो मुंडी वाला सांप, तो यही है वो, ठीक है. So basically movies में सुना है. ओके. ऐसे normally. अच्छा, मूवीज का मैं आगे बताऊंगा. ये स्लाइड, यही पीपीटी में मूवीज के बारे में, मूवीज में तो बहुत कुछ आता है, ये इसमें है, आप लोगों को एंड में पता चलेगा. सो अगर तो फर्स्ट टाइम जिसने भी सुना है कि दो मुंडी वाला सांप, और फिर किसी ने ये भी सुना होगा कि अरे 5 करोड़ का सांप है वो 10 करोड़ का, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. फर्स्ट थिंग, इफ यू सी द स्नेक, इफ यू सी द हेड ऑफ द स्नेक एंड द टेल ऑफ द स्नेक, बोथ लुक सेम. Is that right? Yes. Yeah. And why they both look same? Any reason? Any reason? कोई बता सकता है? दोनों एंड पे उसका मुंह है, इसके लिए क्या? नहीं, दो एंड पे कैसा मुंह रहेगा? अगर वो दोनों साइड से खा सकता तो वो बॉडी कैसे करेगा? ओह. और फिर मैंने तो इसके बारे में ये भी मत सुना है कि 6 महीने आगे से चलता है, 6 महीने पीछे से चलता है, ठीक है. 6 महीना आगे से इसका मुंह खुलता है और 6 महीना फिर पीछे से इसका मुंह खुल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज ऑल मैथ, ठीक है. द मेन रीजन व्हाई इसका हेड और उसका टेल सिमिलर लगता है इज बिकॉज दीज स्नेक्स आर बरोइंग स्नेक्स. इन ये अपने लाइफ का ज्यादा करके टाइम बिल के अंदर ही बिताते हैं, ठीक है. व्हेन दे आर आउट, ठीक है, ऑन हंट, हंट के लिए भी ये लोग बाहर नहीं निकलते. ये लोग सिर्फ हेड बाहर निकल के रखते हैं खड्डे के. कभी कोई चूहा अगर सामने से जा रहा है, दे ग्रैब इट, दे कॉइल इट एंड दे ईट इट, ठीक है. So that's why it's called sand boa. They belong to boa family, which is constructions. And if you see the tail, it look like head, as मैंने पहले बोला. उसका रीजन ये है कि ये सांप है ना, बहुत स्लो मूविंग जानवर है, ठीक है, बहुत स्लो मूव करता है. व्हेन दीज स्नेक्स आर मूविंग, ठीक है, और अगर इसको किसी प्रीडेटर ने इसका देख लिया, कोई किसी काइट ने या कोई चील वगैरह जो उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो व्हाट दे डू इज दे, हर एक प्रीडेटर सिर पे मारता है, ठीक है. तो इवन इसके जो प्रीडेटर्स है वो उसको सिर पे मारने के लिए जाते हैं. व्हाट ही डज इज, ये पूरा कॉइल कर लेता है
एंड उसका जो टेल होता है ना, वो है उसके सामने फेंक डालता है और उसका हेड अंदर ले लेता है। दैट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। या फिर जो इसका प्रीडेटर रहेगा, ठीक है, वो उसके सामने से निकल जाता है और जो प्रीडेटर रहता है वो उसके पूंछ पे मारता है, ये सोच के कि उसका हेड है। तो आप जितने भी वाइल्ड रेस्क्यूज अगर ये देखोगे चैन बोआज, तो यू विल फाइंड द टेल विच इज टोटली इंजर्ड, बिकॉज वो प्रीडेटर्स का हमला होता ही है उन पे, एंड दैट्स वेरी कॉमन। So that's a defense mechanism, just because the snake is very slow moving animal. इसके लिए next slide please. Even this is a sand boa, which is it's a common sand boa, ठीक है। इसको लोग पाइथन से भी कंपेयर करते हैं कभी कभार, पाइथन का बच्चा है, अजगर का बच्चा, बट नहीं, ऐसा सैंड बोआ। इसका हाइट अगर आप हेड देखोगे तो ये पाइथन से बहुत सिमिलर मैच होता है, बट कलरेशन है एंड ऑल बहुत कुछ अलग है, ठीक है। इफ यू सी द टेल, ठीक है, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड वाले फोटो में देखोगे टेल, तो इट्स काइंड ऑफ रफ। जो टेल होता है ना इसका, वो बहुत रफ होता है, ठीक है। कंपैरेटिवली पाइथन, पाइथन था ह्यूज, पाइथन था स्मूथ, बट इसका जो बॉडी पैटर्न होता है वो थोड़ा रफ होता है। आप जब इसको हाथ में लोगे तो यू विल फील समथिंग रफ। सेकंड थिंग, इवन दिस इज अ बरोइंग स्नेक, बोआ कंस्ट्रक्टर, ये भी अपने शिकार को छुप के शिकार करता है एंड देन जकड़ के मार देता है एंड देन खा लेता है। और ये भी ज्यादा, ये भी नॉक्टर्नल स्पीशीज है। हाउ आई कैन टेल इट नॉक्टर्नल स्पीशीज, बिकॉज इफ यू सी द आईज on the right side of the photo, I don't think so it's very big, it's clear. On the right side of the photo, if you see the eyes, it's like a cat eye. Okay, so every animal which has a like cat eyes, those are nocturnal species. Second photo please. Next slide. So now it comes on a big four. So let me tell you, India में ना बहुत सारी snake की species पाई जाती है, बहुत सारी, like you can say more than 300 snakes are found in India. But हमें किस सांपों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। आप सबके बारे में तो नहीं जान पाओगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिग फोर venomous species which are mostly very common all over in India. Okay, I'll go ahead. Next slide. कोबरा, ठीक है। हाँ, तो एक और पॉइंट था कि इंडिया में जितने भी सांप मिलते हैं, जैसे 300 से ज्यादा सांप हो गए, तो 300 से ज्यादा सांप हो गए, उसमें से जो 80% स्नेक्स आर नॉन वेनेमस, मतलब जहरीले सांप नहीं है। बचे 20%। 20% में से भी आधे से ज्यादा जहरीले सांप जो होते हैं वो मिलता है हमें घने जंगलों में, और दूसरा जो आधे से ज्यादा जहरीले सांप है वो मिलता है हमें डीप सी में। which are the most common species which we found are these which अभी जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। So this is a spectacle cobra. Why this is called a spectacle cobra? Can anyone tell me about this? Pattern as in what? Uh, Unmute करके. I want the answer. Can you please unmute and tell? It's always alert. No, it's not always alert. Not at all. Spectacular pattern. Yeah, that's right. Spectacular pattern. If you see the body, if you see the back of the snake on your left side of your screen, you will see the spectacular pattern. Okay. And second thing, what these snakes do is, देखो ये स्नेक है, ठीक है, दिस इज अ कोबरा, ठीक है। व्हेनेवर व्हाटएवर इसके जो सामने होगा ना, ये उसी पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जो उसके पीछे उसको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। इवन इफ यू डू लाइक दिस, उसको कुछ नहीं समझने वाला, अगर उसके सामने अगर वो किसी चीज के ऊपर अटेंशन रखा हुआ है तो, ठीक है। बट मत करना प्लीज, नहीं तो फिर कुछ हो जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ मत करना। सो ये इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर स्नेक मूव हो रहा है कभी, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, और इसको सामने का दिख रहा है, इसको उसके पीछे का कुछ नहीं दिख रहा, तो कभी अगर इसको ऐसा लगता है कि हाँ, उसको कभी डर लगता है कि हाँ कि मेरे को कभी कुछ कर सकता है या कोई झपट सकता है, तो व्हाट दे डू इज वो अपना फन फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो उसके प्रीडेटर्स होते हैं, जो अपने जैसे शिकारी बर्ड हो गए, लाइक ईगल्स है ना, सरपेंट ईगल्स, ठीक है, ये जब भी इसको काटने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और इसको उनका शैडो भी दिख गया या ऐसा कुछ भी, ठीक है, व्हाट ही विल डू इज वो अपना फैला देगा फन। व्हाट दे विल थिंक इज इसका हेड तो मेरे तरफ है,
ठीक है, वो जो डॉट्स है, स्पेक्टाकल मार्क्स है, उसके वजह से व्हाट दे विल फील इज इसके हेड तो मेरे तरफ है, इसके आईज मेरे तरफ है, एंड ही विल बैक ऑफ. गॉट दैट? आई हैव हर्ड कि ये लोग नेस्ट बनाते हैं, इज इट ट्रू? नेस्ट? नहीं, cobras don't make nest. The only cobra, it's not even a cobra, ठीक है, the only snake, there is only one snake in all over the world which makes nest, and that's a king cobra. First of all, let me tell you, king cobra doesn't belong to cobra family, because cobra के family के जितने भी सांप है, ठीक है, उनका अगर आप साइंटिफिक नेम चेक करोगे तो साइंटिफिक नेम होता है नाजा. ठीक है, नाजा से चालू होता है, जैसे कि इंडियन स्पेक्टाकल कोबरा का है नाजा नाजा, मोनोकल कोबरा का है नाजा कौतिया. बट इफ यू सी द साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा, उसका साइंटिफिक नेम है ओसिफेगस हनाना. दे जिसने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी एनीथिंग? यस, और इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 35 years. Cobras goes to up, go up to 35 years. Rat snakes go up to 8 to 10 years. Cobra 35 years तक जाते हैं, and Python 20-25 years. Wolf snake around 5-6 years something. It depends. हर सांप का डिपेंड करता है कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, उसका वो कितना फीडिंग क्या टाइम पे मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट. और हाँ, नेस्टिंग की जो आपने बात की है, सो इट्स ओनली वन एंड ओनली किंग कोबरा जो नेस्ट बनाता है, और कोई ऐसा सांप नहीं है जो नेस्ट बना. हाउ मेनी डेज डज इट टेक्स to hatch their eggs depends on the humidity of the place where it is given. Okay, अगर मुंबई में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली कोबरास के एग हैच होते हैं अराउंड 60 डेज. ठीक है, 60 डेज कोबरा के एग्स को हैच होने के लिए लगता है. बट अगर मुंबई में आप देखोगे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो कभी कभार 50 डेज, 55 डेज, 40 डेज तक हैच हो जाते हैं मुंबई में. और वही अगर आप मुंबई के बाहर जैसे पुणे चले गए, पुणे में वहाँ पे ड्राई होता है बहुत, गर्मी, तो वहां पर थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है, वहां पे 60 डेज प्रॉपर लेगा. इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी द एग्स आर गेटिंग. सेकंड स्लाइड प्लीज. सो दिस स्नेक इज कॉल्ड अ कॉमन क्रेट, जो कि मैंने बताया था आपको, वुल्फ स्नेक, याद है? तो पीपल कंपेयर दिस वुल्फ स्नेक एंड गेट नॉट कंपेयर, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन द वुल्फ स्नेक एंड कॉमन वुल्फ दिस क्रेट. अगर आपने पहला देखा होगा, मैंने बोला था वुल्फ का जो बैंड होता है वो नेक से चालू होता है, एंड इफ यू सी द क्रेट, इसके नेक पे आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे, इसके थोड़े आगे से, नेक के आगे से उसके बैंड्स चालू होता है. These snakes are black in color. ठीक है, I'm not a racist, but yes, this will be the proper way. How can I tell you? But it's like how to identify. It's a crate. It's like किसी निगरो आंटी ने सफेद कलर की चूड़ियां पहनी है हाथ में. You can take this only as a identification thing. Don't become a racist, guys, please. So that will be the proper identification which I can tell you. ब्लैक कलर के स्नेक होता है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के बैंड होते हैं, और व्हाइट कलर का जो बैंड होता है वो नेक के ऊपर से स्टार्ट नहीं होता, नेक के थोड़ा आगे से होता है. ठीक है, इज दैट ओके? यस और नो? यू कैन एटलीस्ट टाइप, गाइस. 10 snakes start to eat a bigger meat after. I didn't got that. Can you please type it again? कहाँ गया? Just a minute. The snakes start to eat the bigger meat after some days. No, it depends. What snakes do is, snakes are very intelligent animals, reptiles you can say. Not even that much intelligent. कभी कभार तो बड़ा चूहा खा के वापस निकाल देता है, हजम नहीं होता है करके. No, I don't think so. I've never seen any snake who was starving to eat because नहीं यार, बहुत कम होता है, बहुत कम chances. It totally depends on where the snake is, how much does it get to eat over there, and अगर उसको कम मिल रहा है, अगर उसको पता है कि हाँ मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे उसको उसको बहुत कम मिल रहा है खाना, तो what snake do is they don't digest their food. ठीक है, अगर आप कैप्टिव में अगर कोई आप स्नेक आपके घर पे रखोगे, अगर आप उसको हर हफ्ते खाना दोगे, तो वो स्नेक क्या करेगा पता है? वो स्नेक है ना, उसको खाएगा और फटाक से हजम भी कर देगा. बट वही अगर आप वाइल्ड में अगर आप कोई स्नेक को देखोगे, ठीक है, अगर आप एक्चुअली में अगर उसके ऊपर स्टडी करोगे, तो वो क्या करता है ना, खाया ना तो 1-2 हफ्ते तक उसको हजम नहीं करता है,
वो अपने अंदर उसको रखता है, संभाल के पचाता है, आराम आराम से पचाता है। दैट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ सो एक मिनट, पीछे 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 पीछे। हाँ, सो इसका आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज द स्नेक इज द मोस्ट हाईली वेनेमस स्नेक। ओके, ये कोबरा से 8 गुना ज्यादा जहरीला है, ठीक है। द स्नेक कंटेन्स अ न्यूरोटॉक्सिक वेनम। जो कोबरा में पे न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम मींस इट अटैक्स आवर नर्वस सिस्टम। ओके, बाइट होने के बाद दीज स्नेक्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, नॉट कॉल्ड, यू कैन से, गांव साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पे उसको सूर्यकंठी ऐसे कुछ तो बोलते हैं, बिकॉज बहुत जनों का मानना है ये है कि रात को काटते हैं दूसरे दिन इंसान उठता नहीं है। हाँ वो फैक्ट है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ये बहुत साइलेंट किलर होते हैं, ठीक है। ये जब भी अपने को काटेंगे अपने को पता नहीं चलेगा वो टाइम पे, बिकॉज इनके जो दांत होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। यू वोंट इवन गेट द मार्क्स समटाइम्स ऑन योर हैंड और वेयर इट इज बिटन। सेकंड थिंग, सांप दिखे तो भाई दूर ही रहना, यू प्लीज, मतलब, और उसको ट्राई भी मत करना रेस्क्यू करने का, बिकॉज दीज स्नेक्स आर वेरी लाइक वेरी मच एक्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट, दिस क्रिएट। अगर आप मेरा मैं आई मीन यूट्यूब पे मैंने वीडियो डालना चालू किया तो I'll definitely do it on crate also when I get a rescue of crate. So what we have noticed is जो दूसरे स्नेक्स होते हैं जैसे कोबराज हो गए, वाइपर्स हो गए, ठीक है, और मैंने अगर उनके टेल से उनको बड़ा अगर टेल से उठाया, ठीक है, एंड इफ दे आर कमिंग अप ऑन मी, व्हाट आई डू इज आई जस्ट थोड़ा सा उनको झटका दूंगा नीचे, ठीक है, और वो लोग सीधा नीचे लटक जाएंगे, दे वोंट कम बैक। बट व्हाट दिस क्रेट डू इज, जब आप उसको जरा से भी ऐसा करोगे ना, झटका दोगे ना, तो जो प्रेशर से वो नीचे जाएगा वही प्रेशर से ऊपर आता है। दीज आर सो इंटेलिजेंट एंड दीज आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ओके, दिन के टाइम पे आपको बहुत कम दिखेंगे, बहुत लाइक ना के बराबर 99.9% ही आपको नहीं दिखेंगे दिन के टाइम पे, बट रात के टाइम पे ये डेफिनेटली दिखेंगे। मुंबई में अगर आपको जानना है कि ये कौन से लोकेशन पे मिलता है ज्यादा करके, तो ये नवी मुंबई साइड मिलता है, चेंबूर साइड मिलता है, मानकुर साइड मिलता है, एंड देन बोरवली साइड मिलता है, मलाड साइड मिलता है, माटुंगा साइड मिलता है। मेरा जहाँ जहाँ मेरा रेस्क्यू मैंने वहां पे बताया। आपके SNDT कॉलेज के यहाँ पे मुझे एक क्रेट मिला है, लाइक पिछले साल। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। And yeah, crates usually feed. Let it be. Let it be. Crates usually feed on other snakes, other venomous snakes. मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में क्रेट दिख रहा है, ठीक है, अगर समझो मेरे यहाँ पे आपको आपके घर के यहाँ पे क्रेट मिला, ठीक है, दिखा, तो उसका एक इंडिकेशन ये है कि आपके यहाँ पे दूसरे वेनेमस स्पीशीज का पॉपुलेशन बहुत अच्छा खासा है, बिकॉज क्रेट्स usually feed on other snakes and specifically on venomous snakes. मैंने देखा है जहाँ तक। Does anaconda eat human or is it a vet? No, anaconda doesn't eat human and no snake can eat human. Okay. एक सांप को इंसान को खाने के लिए उसको नए नए बोल के 30 फीट तक होना चाहिए because of the shoulders. Yeah, snakes can kill. Okay, snakes can kill you, but no. Is this black mamba? No, not black mamba. Next slide, please. Where you find them, we find these crates all over Mumbai. All over Mumbai, and the city snakes have changed their habitat to the concrete jungle. Okay. Yeah, these all live in Mumbai and all over India. Cities like Mumbai, all the cities, all the cities. If king cobra doesn't belong to cobra family, what is the name as cobra due to its structure? Possibly due to its structure. Even I didn't notice anything like that. मैंने इतना उसके ऊपर research नहीं किया कि I can tell you about the answer for that. But yeah, it's a nice question. I'll definitely tell you if you can ping me on Instagram. I'll actually do a research on it because it was a good question which you asked. So next slide. So it's a Russell's viper. If you see the pattern, you will find a chain-like structure on it. Like अगर इसको आप लोग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अगर आपने सांप देखा एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स अ रसेल्स वाइपर और समथिंग एल्स, तो आप इसका बॉडी पैटर्न देखा, बॉडी पैटर्न आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी सांप ने रुद्राक्ष की माला पहनी है। एग्जैक्टली राइट, डिड यू गॉट दैट? हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स अ रसेल वाइपर और नो? एक सांप ने रुद्राक्ष की माला पहनी है, बस इतना समझ लो।
ऐसा कुछ सांप देखा भोले भगवान का तो दूर रहना, उससे उसके नजदीक भी मत जाना, बिकॉज उनका स्ट्राइक रेंज बहुत अच्छा खासा होता है। अगर सांप अगर कोने में बैठा है, ठीक है, और अगर आप उसको उंगली करने जा रहे हो, अगर उसको छेड़छाड़ी करने जा रहे हो, तो उनका 1/3 बॉडी वो हवा में आपको स्ट्राइक कर सकता है पूरा। और ये सांप बहुत ज्यादा बदनाम है इंडिया में। द ओनली रीजन इज पीपल थिंक दैट दिस इज अ पाइथन। आई टोल्ड यू कि पाइथन का जो बॉडी होता है, बॉडी पैटर्न होता है, आर एल्बिनो स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। आई albino albino, right? Albino species are found all over the world. Not also in India, because मेरा खुद का एक albino wolf snake rescue है। albino is nothing but it's a genetic disorder, वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। सो हाँ, तो concentrating on this snake, if you see the body pattern, तो एक सांप ने रुद्राक्षी माला पहनी है ऐसा समझना है, एंड that will the proper identification of the snake. Second thing, इसको लोग पाइथन के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आपने पाइथन का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया जब मैंने पहले, ठीक है, तो आपने अगर वहां पे देखा होगा, तो पाइथन के बॉडी के बारे में मैंने बोला था इरेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न्स होता है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो एक लाइन में, एक अलाइनमेंट में, जो पाइथन में नहीं होता है, ठीक है। और दी स्नेक्स व्हाट दे डू इज, अगर आपने इसको देखा, ठीक है, ये डायरेक्टली आके आपको काटेंगे नहीं। आप अगर उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, लकड़ी से कुछ कर रहे हो, तो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट हिसिंग। घर में कुकर की सीटी जैसे बजती है ना, लिटरली वैसा आवाज होता है इनका। ये ऐसे कॉइल करेंगे, लेफ्ट साइड में जैसा फोटो है, जैसे कॉइल करेंगे, दे स्टार्ट मेकिंग नॉइस। इनका बॉडी बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा होएगा, एंड दे स्टार्ट मेकिंग नॉइस, और एक्चुअली वो बहुत भयानक आवाज होता है। घर में कुकर की सीटी जैसे बजती है वैसा आवाज है वो। सेकंड स्लाइड प्लीज। It's already 148. Next slide. This is a saw-scaled viper. ठीक है? The reason why it is called a saw-scaled viper, can anyone tell me about this? Unmute and tell me why it is called a saw-scaled viper. Hello? बिकॉज उसका स्केल्स जो है वो सॉ के जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा सॉ का तीत होता है वैसा। Exactly. But अगर ये आपको ये फोटोज में नहीं दिखेंगे, ठीक है, बट इफ यू सी द स्केल्स, ठीक है, मैंने एक जस्ट मिनट, I'll check if I can get that photo. Just a minute. If you see the structure, जो इसके लोअर बॉडी के या जो नीचे के 3 स्केल्स होते हैं, ठीक है, if you see over there, आपको माइक्रोस्कोप से चेक करना पड़ेगा, you will find teeth like saw. I had that photo. I'm sure I can show it. एक सेकेंड, बिकॉज दिस जो मैं बता रहा हूँ वो एक रिसर्चर है भरत गिरी करके, उन्होंने वो डाला था, एंड एक सेकेंड, I'll show it because it's very important to show that photo. So if you see the photo, can you see it? Can you see the saw-like structure? Is it visible? So this is the scales of this saw-scaled viper, and that's the reason why it is called a saw-scaled viper. And comparatively, this snake is also a venomous species which contains a hemotoxic venom inside it. Hemotoxic venom, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत छोटे सांप होते हैं ये कंपैरेटिवली टू द अदर स्नेक, दीज आर वेरी स्मॉल। मेरे को अगर जहां तक अभी तक का रेस्क्यू वो होता है, 1 फुट का भी अभी तक रेस्क्यू नहीं है मुझे ये, 10 इंच, इतने 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 ये साइज मिलते हैं हम लोग का रेस्क्यू होता है। हाईली वेनेमस स्पीशीज, ठीक है, और ये ज्यादा करके कहाँ पे बैठते हैं, पत्थरों के नीचे, और अपने पत्थर के ट्रैपिंग पे गए और अपने पत्थर उठाया, सीधा हाथ डाल दिया, you get bitten by the snake. गांव साइड में बहुत होता है ये कि जो डैम बनाते हैं वो लोग खेत में पानी डालने के लिए, वहां पे जाके लोग छुप जाते हैं, and then they directly put their hands inside it, और ये कभी सांप वहां पे बैठा रहेगा, what they feel है हमें को कोई मारने के लिए, and they strike, they bite. That's the reason. लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि वो कैसा बैठा। नेक्स्ट फोटो। So these are the big 4 venomous species which you have to keep in your mind because these is most important. Okay, the first photo is crate, the second photo is Russell's viper, the third photo is cobra, and the fourth photo is the saw-scaled viper. आप लोग को ये याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज
यही जो 4 सांप है जो जहरीले है, जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, बाकी ऐसा कोई सांप नहीं है। देयर आर बैम्बू पिट वाइपर्स, बट वो आपको जंगल में जाने पड़ेंगे, जैसे आर्य कॉलोनी का जंगल हो गया, वहां पे आपको बैम्बू पिट वाइपर्स मिलेंगे। बट नहीं, वो सब का आपको आइडेंटिफिकेशन करना जरूरत नहीं है। आपको इसका आइडेंटिफिकेशन रखना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये आपकी जान बचा सकते हैं आज नहीं तो कल। एंड आई गेस देयर आर पीपल फ्रॉम उड़ीसा ऑल्सो ओवर हियर। सो उड़ीसा में भी आपको, उड़ीसा में तो किंग कोबरा मिलता है, तो किंग कोबरा का तो आपको आइडेंटिफिकेशन पता ही होगा। इट्स अ बिग स्नेक विच हैज अ वाइट ब्लैक इन कलर एंड वाइट और येलो स्ट्राइप्स ऑन इट। एंड आगे फोटो में बताता हूँ। सेकंड स्लाइड प्लीज। सो दिस इज द बैम्बू पिट वाइपर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो इसकी आईज भी कैट आईज जैसी होती है। दैट मीन इवन द स्नेक एज अ नॉक्टर्नल स्पीशीज, हाईली वेनेमस स्पीशीज, बट या इसके डेथ रिकॉर्ड जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। आई डोंट थिंक सो कि कोई मरा भी है, बिकॉज जो इनका वेनम होता है ना, वो इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो एक ह्यूमन को मार सके। मार सकता है, इट्स अ वेनेमस स्पीशीज, इट्स अ हाईली वेनेमस स्पीशीज, बट ये एक्चुअली एक ट्री स्नेक है। और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं अभी तक इसको समझ चुका हूँ कि जो ट्री स्नेक्स होता है ना, इनका वेनम जो अगर हाईली वेनम स्पीशीज भी है तो भी इनका वेनम इनको कभी स्ट्रांग बनाने की जरूरत बनी ही नहीं कि वो इंसान को मार सके प्रॉपर तरीके से। क्योंकि ये जो ट्री स्नेक्स होता है वो ज्यादा करके छुप के शिकार करता है, पेट वाइपर्स। शिकार आया, दे ग्रैब इट, और शिकार तो उधर ही खत्म था। तो कभी इन्होंने मेहनत नहीं किया, तो उन्होंने अपना वेनम का जो पोटेंट है वो कभी स्ट्रांग भी नहीं किया उस चीज के लिए। तो अभी भी जो केसेस आते हैं बैम्बू पिट वाइपर्स के, 99% केसेस द पर्सन अलाइव, वो जिंदा बच जाता है। 1% डिपेंड ऑन योर बॉडी कि वो वेनम को कैसा रिएक्ट कर रहा है आपके बॉडी पे। दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू डू फास्ट। कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बता सकता है इसका? कोई नाम बता सकता है? rat दैट्स, rat snake, sir. या Rat snake. या दैट्स राइट। सेकंड स्लाइड। Okay, tell me what snake is this? Black mamba. It was a good try, but ब्लैक मम्बा का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इंडिया में नहीं मिलता, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ब्लैक मम्बा का बॉडी ग्रे कलर का होता है, उसके मुंह के अंदर जो होता है वो ब्लैक होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लैक मम्बा। कोई जो भी बताएगा, I'll literally clap for them. I literally come Mumbai and give them chocolates if जो मेरे को इसका आइडेंटिफिकेशन बताएगा। It's very, have a look on his eyes. Eyes देखो, मैंने कुछ तो बताया था। Common crate. No, common crate had bands on it. Python. Python, not at all a python. Python is actually totally different. अरे यार, उसकी आंखों पे ध्यान दो, आंखों पे ध्यान दो, आंखों पे। I'm Is sure it you a will tell it. rat? Yeah, Rat. yeah, actually claps for you because it's a rat snake. If you see the eyes, I told you कि उसके eyes के नीचे lines होता है, याद है? rat snake का बोला था eyes के नीचे bands होंगे, चार चार पांच। Can you see over there? Yeah. And the Yes, sir. reason why it is totally black in color, ठीक है, it's because of the geographical conditions. जो हमारे यहाँ के सांप है, जहाँ पे मुंबई के सांप है, ठीक है, मुंबई में जहाँ पे अगर आप सिटी साइड में रहोगे और वही अगर आप आर्य कॉलोनी के अंदर चलोगे तो आपको डिफरेंट स्नेक के कलर में आपको टोटल डिफरेंस मिलेगा, टोटल डिफरेंस। द रीजन इज मुंबई जैसे शहर में, ठीक है, जहाँ पे झाड़ पौधे बहुत कम है, जहाँ पे छाव बहुत कम होती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, वहां पे स्नेक्स का कलर जो होता है वो बहुत लाइट होता है। रीजन इज, अगर उसको ज्यादा अगर डार्क कलर रहेगा तो उसका बॉडी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो हीट स्ट्रोक से मर जाएगा, हीट की वजह से मर जाएगा। स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे नीड हीट, ओके, बट यस, ज्यादा हीट भी उनको मार सकता है। सेकेंड थिंग, वही ये सांप जो है ना, ये जंगल के साइड का सांप है। हाउ कैन से कि ये जंगल का सांप है? जंगल में बहुत सारे झाड़ पौधे होते हैं, वहां पे बहुत कम धूप निकलती है, बहुत कम धूप जमीन तक पहुंचती है, और इन सांप को जैसे ही धूप लगे उनको पूरा एब्जॉर्ब चाहिए, मतलब वो धूप उनको सोखना चाहिए फटाफट फटाफट। दैट इज द रीजन व्हाई इनका कलर डार्क हो जाता है जंगल में, और शहर के जहाँ पे ओपन लैंड होता है वहां पे उनका कलर लाइट होता है। समझा या नहीं समझा? गुड। नेक्स्ट Understood, sir. स्लाइड, या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The left side, can anyone tell me about the left side?
मैं खाली लेफ्ट साइड के बारे में पूछ रहा हूँ. Tell me about the left side. Which snake it is? Russell Viper. That's right. Russell Viper. Yeah, that's a Russell Russell Viper. And on the right side, can anyone tell me about the right side snake? Red sand boa. You are a bit closer. You're a bit closer, but red sand boa. Common sand boa. Yeah, that's right. That's perfect. That's perfect. That's perfect. It's a common sand boa. Next slide, please. On the left, on the right. Saw scale viper. Left side. Right. Right side is which one? Cross-scaled viper. Yeah, it's a saw scale viper. And on the left side? This is It's a cat snake. Okay, it's a Bidom's. Yeah. It's a Bidom's cat snake. Okay, and second thing, Bidom's cat snake और social viper में भी बहुत जन confuse हो जाते हैं. ठीक है, तो if you see the head of the snake, main head of the snake, ठीक है, अगर आप social viper के head पे देखोगे तो आपको एक arrow सामने की तरफ आता हुआ head की तरफ, ठीक है, arrow दिख रहा है. That's the main identification. और वही अगर आप इसमें देखोगे cat snake में तो वो थोड़ा उल्टा हो जाता है. समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो मैं बाद में समझा दूंगा. Next slide, please. And now tell me the identification. Tell me the identification. Python. Not Cat at all. snakes. Cat snakes. Which is a cat snake and what? Which is a Right cat snake? one. Tell me. Right one. one. Okay, Right yeah, one. right. Right one is a cat snake. And what about the left one? Which one it is? Tell me about the left one. saw scaled. Yeah, that's right. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक arrow होता है उसके सिर पे. If you see on the left side, you will find the arrow on the head. Is that right? Yeah. And if you see on the right side, you will find a Y. You will find a Y over there. Can you see the Y over there on his head? That's a cat snake. Second slide, please. Now it's a proper identification. Who can do it? Who can do it? Go ahead. Go ahead. Common crate. Common crate. Which is a common crate? Left one or the right one? Because यहाँ पे Left one. Are you sure? Left Are you one. sure? Yes. Are you sure it's a common crate? Because यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो जो danger का logo है, जो tag है वो उल्टा हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? Okay, the left one is थोड़ा नीचे से start हो रहा है. that's perfect. And what about the right one? Which snake it is? So is it common wolf snake? That's perfect. That's perfect. Claps. Good. आप लगता है तुम अकेले थी जो ध्यान दे रहा था, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा था. I guess बहुत कम जन ध्यान दे रहा था. Next slide, please. Myths and blind faiths. Next. All snakes are poisonous. What do you think? Are snakes poisonous? No. Uh, No. Not all, sir. First of all, let me tell you, there is no snake which is poisonous. Okay, there are 0 snakes which are poisonous. Okay, नहीं एक है यार वो काटने के बाद आपको poison नहीं चढ़ेगा उसका, ठीक है? It's a red neck killback जिसके neck के ऊपर poison होता है, glands होता है. But yeah, let me tell you, snakes are not poisonous at all. Snakes are venomous. There's a big difference between venom and poison. Okay, what is poison? Poison, if you eat it, you are going to get affected by it. Okay, venom, even if you eat it, nothing is going to happen. It's going to get digested into your body, into your digestive system. Venom only get affected when it goes in your blood system. It comes in contact with blood. Got that? कि मैं वापस से बोलूं? Got it, sir. Poison, okay, if you eat the poison, you are going to get affected by it. But even if you eat the venom, nothing is going to happen. अगर आपने सांप का जहर निकाल के उसको पी लिया, आपको कुछ नहीं होगा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके हजम हो जाएगा. इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको पीना चाहिए. The reason is we brush daily and we get minor injuries in our gums every day. Okay, and we don't know anything about it. And if you drink the venom at that time,
वो आपके ब्लड सिस्टम में जा सकता है वो टाइम पे, and you are going to die. Okay, blood. Sorry, sir. I have one question. Yes, Can I? Sorry to interrupt you in between. it's okay. So, what is venom and what is poison? Is same or kind of? It's Is it totally different? that's what I said. Venom is totally different. Poison is totally different. Venom is found in nature, and it's a कैसा बताओ, venom is natural, poison is man-made. You can also tell because poison तो ज्यादा करके humans से बनाते हैं. Venom humans don't make. Yeah, venoms are already there in the nature with animals. जैसे कि tarantulas हो गए, scorpions हो गए, they got venoms. They don't have poison, they got Yes. venoms. Thank you, sir. Yeah. Um, yeah, second slide, please. Next. Snakes with two-headed or five-headed cobra. That's all fake. That's all fake. सांपों को ज्यादा से ज्यादा 2 मुंडी सामने की तरफ से निकल सकती है, बट 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. जब सेल ये होता है अलग होता है. ठीक है. मेरे को याद करना पड़ेगा, मेरे को बचपन में जाना पड़ेगा. तभी जब सेल डिवाइड होता है तो वो दो इस पे होता है, एक साथ 4 इसमें नहीं होता. अगर आपको वो अमीबा का स्ट्रक्चर याद, अमीबा शायद आई गेस उसका स्ट्रक्चर याद होगा, आई गेस आपको पता है मैं किस क्रोमोसोम्स या किसके या तो वो 2 इसमें डिवाइड होता है, वो 4 इसमें डिवाइड नहीं होता एक ही टाइम पे. तो स्नेक को अगर हो के भी 2 हेड हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं होंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. स्नेक्स ईट ह्यूमन. किसको लगता है हाँ, किसको लगता है ना, बता सकते हैं? No. Snakes don't No, sir. eat human. Snakes do not Snakes. eat humans. Yes. Yeah, सांप No. इंसान को नहीं खा सकता. The only reason is because of the shoulders. We have broad shoulders. सांप यहाँ तक अपने को निकल सकता है, बट इसके आगे नहीं निकल सकता. ठीक है. We got broad shoulders. ठीक है. अपने को यहाँ तक निकल सकता, बट यहाँ तक नहीं निकल सकता. यहाँ से नहीं निकल छोटे सकता. बच्चे लोग को निकल सकता है, उनका तो शोल्डर ब्रॉड. डिपेंड करता है कि वो सांप का साइज क्या. अगर सांप है आराम से 12 फीट या 13 फीट का, तो वो आराम से एक साल के बच्चे को निकल सकता है. तो इसका ये मतलब नहीं आप लोग डाल दो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट थिंग. स्नेक्स ड्रिंक मिल्क. किसको लगता है हाँ, किसको लगता है ना, और किसको लगता है हाँ तो क्यों? मेरे को लगता है कि वो लोग मतलब उनके लिए शायद वो अच्छा नहीं होता, बट नाग पंचमी में ये जो सपेरे लोग होते हैं वो लोग पिलाते हैं, और इसलिए शायद क्योंकि उन लोग काफी टाइम तक उनको स्टार्व करके रखते हैं, लाइक काफी देर तक. That's perfect. That's a perfect answer which you said. And second thing, सांप दूध वही जानवर पी सकता है जो जानवर दूध देता है. Like mammals, only mammals can drink milk. Okay, not reptiles. Reptiles अगर दूध पीते हैं तो वो मर जाएंगे दूध पी के. दूध उनके लिए जहर है, वो उनके पेट में जाकर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर सड़ना चालू होगा. Reason is they don't have lactic acid in their body. We have lactic acid in our body. Snakes don't have. Reptiles don't have lactic acid in their body. So indirectly the snake is getting tortured. वो अंदर ही अंदर टॉर्चर तो वैसे भी होता है नाग पंचमी के टाइम पे, बिकॉज इसको इतना टाइम भूखा रखा जाता है. ठीक है. द रीजन व्हाई द स्नेक मिल्क ड्रिंक्स मिल्क एट दैट टाइम इज बिकॉज उसको इतना टाइम भूखा रखा जाता है, इतना टाइम प्यासा रखा जाता है. एंड अपने यहाँ के दूध 100% प्योर दूध नहीं होते हैं. अपने यहाँ के दूध में पानी का मिलावट ज्यादा होता है. स्नेक्स वाटर एसेंस को स्मेल करके ये सोचता है कि मैं पानी पी रहा हूँ, एंड व्हेन ही ड्रिंक्स ही इवेंचुअली डाई आफ्टर दैट. Isn't that animal abuse? It's an abuse. And we already are doing raids on it. जब भी हम लोग को ऐसा कुछ टिप आता है कि this is going on in this particular area, we go there, we rescue the animal, we do the proper treatment of the animal and release them back into the wild. And next slide. नागमणि जेम और हेड विथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. नागमणि वागमणि कुछ नहीं होता. अगर नागमणि होता तो आज मैं एक अलग लेवल पे होता है यार. नागमणि वगैरह कुछ नहीं होता. ठीक है. इट्स ऑल फेक. स्नेक टेक्स रिवेंज. नो, स्नेक डोंट टेक रिवेंज. नागिन सीरियल यहाँ पे नागिन तुम ही लग रहे हो. स्नेक्स टेक रिवेंज, सॉरी, स्नेक्स टेक रिवेंज नहीं. अगर आप लोग ने देखा होगा कि गांव साइड में जो बोलते हैं नाग को मारेगा तो नागिन आती है, नागिन को मारेगा तो नाग आता है. तो या दैट्स अ फैक्ट. अ पर्टिकुलर रीजन अगर आप एक साइड से देखोगे तो एक फैक्ट है. उसका रीजन क्या है कि
जब भी आप कोई सांप मारते हो, ठीक है, तो what happens is the pheromones. What are pheromones? Does anyone know about pheromones over here? Tell me about pheromones. What No. exactly are pheromones? Anyone who can go ahead and tell me? Okay, no. Okay, so let me tell you, pheromones are sex glands. Okay, snakes में जो pheromones होता है, ठीक है, when they are ready to mate, what they do is they spread the pheromones so that the male and the female think that yeah, someone is ready to mate, and then they mate. The male follows the smell of the female, and sometimes female follows the pheromones of the male. Snake fly for short time in air. Yes, snakes can fly for a short time in air. I'll tell you about this later on. They cannot actually fly, but yes, they can glide in the air. Snakes make there's a oriental flying snake which is found in India, specifically in Karnataka, and the snake actually glides in the air, not flies in the air. Okay. तो मैं ये यहाँ पे था कि स्नेक स्टेक में जब भी आप कोई सांप मारते हो, ठीक है, तो वो जो फेरोमोन्स होता है ना, वो जगह पे स्प्रेड हो जाता है, अपने कपड़ों पे उड़ जाता है या जूते पे उड़ जाता है, जो लकड़ी से हमारा कभी उस पे लग जाता है. वी कैनॉट सी देम, वी कैनॉट स्मेल देम, एंड व्हाट हैपेंस इज, जो आजू बाजू से अगर कोई सांप ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अगर कोई स्नेक ट्रैवल कर रहा है, तो व्हाट दे थिंक इज देयर इज अ मेल और अ फीमेल व्हिच इज रेडी टू मेट, सो दैट्स द रीजन व्हाई दे कम. एंड व्हाट वी फील इज, अरे यार मैंने नाक को मारा या मैंने नागिन को मारा, इसके लिए आज ये हुआ है, वो हुआ है, ये सांप है, वो सांप है. तो ऐसा कुछ नहीं होता. इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नाग बैठा ना सामने ऐसा कुछ नहीं होता. नाग इच्छाधारी कुछ नहीं होता. आई एम वेरी सॉरी. ये सब फैक्ट, ये सब मिथ्स है और कुछ नहीं है. अगर इच्छाधारी होता था, आई गेस वो मेरे को कभी का मार चुका होता. मैंने कितने नाग नागिन को अलग किया है, आई मीन जंगल में छोड़ा है यार. नेक्स्ट स्लाइड. स्नेक डांस टू स्नेक डांसेस टून. हाँ, तो इसका रीजन ये है ना, जब बीन्स बजाते हैं, ठीक है, जब बीन बजाते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, आई सेड यू, कोबरा का अट्रैक्शन होता है पूरा सामने की तरफ, उसके प्रीडेटर की तरफ, ठीक है. तो ये उसका प्रीडेटर है, ठीक है, ये हिला रहा है, ठीक है. वो जब भी बजाते हैं ना, तो कभी वो लोग स्टिल नहीं रखते. व्हाट दे डू इज, वो हिलाते रहते उस चीज को, ठीक है. एंड व्हाट स्नेक थिंग I think they connect with that instrument, right? Yeah, they get connected with the instrument. जब भी वो ऐसा ऐसा बज रहा है, they get connected with the instrument. They think that is the predator. मेरे को उसको काटना है, मेरे को उसको मारना है. They feel scared. They get scared, and what they do is they try to bit on this because वो हिल रहा है. अगर आप लोगों ने कभी ऐसा देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो खाली वो बंदे को बोलना कि भाई खाली ऐसा सीधा स्टिल रख और तू बजा. मेरे को देखना है अभी सांप नाचता है. सांप नहीं नाचेगा, सांप हिलेगा नहीं, ठीक है. सांपों को कान नहीं होते. ओके, इफ यू स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जैक्टली अबाउट द स्नेक्स, या सांपों को इंटरनल ईयर्स होते हैं, बट वो अपने से सुन नहीं सकते, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. विजिबल ईयर्स नहीं होते सांपों को. या mantras act against snake bite, scorpion bite. No mantras can act against snake bite or scorpion bite. I can say about the jadu booty because I believe that like अभी एंटीवेनम्स एंड ऑल तो अभी है, बहुत पहले के टाइम पे तो या जड़ी बूटी से होता था. आई बिलीव ऑन जड़ी बूटीज, बट आई डोंट बिलीव इन मंत्रास एंड ऑन स्नेक बाइट्स एंड ऑल. ऐसा कुछ नहीं होता. व्हाट हैपेंस जब आप गांव साइड में जाते हो, ठीक है, मैं एक बाबा हूँ, ठीक है, मेरे पास आप लोग ने कभी लेके आया कोई इंसान जिसको सांप काटा है, एंड आई विल बी लाइक, आई विल सी, अगर कोई जहरीला सांप काटता है इंसान को या कुछ होता है, तो व्हाट हैपेंस इज यू गेट swelling on your hand or you get symptoms on the bite place, ठीक है. मैं अगर बाबा हूँ, ठीक है, मैंने देखा कि सांप इसको काटा है, मैंने देखा कि कहाँ पे उसको काटा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि उसको कुछ सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, एंड आई विल बी लाइक नहीं, ठीक हो जाए, मैं इसको करवा ही दूंगा, मैं कैसे भी उसको ठीक करवा दूंगा, ठीक है. और वो इंसान ठीक हो जाता है बिकॉज उसको जहरीले सांप ने नहीं काटा है. और जब उसको जहरीले सांप ने काटा होता है, वो देखता है कि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ सूजन आई है या कुछ है, व्हाट ही डज इज, अगर इसने बहुत कैन स्नेक सी कलर इमेज लाइक नो दे कैन नॉट. ओके, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये यार ऐसा बीच बीच में मत बोला है. वह वाज आई. हाँ, तो अभी मैंने देखा कि हाँ सिम्टम्स, हाँ, उसको जहरीले सांप ने काटा है, मैंने देखा कि उसको विषैले सांप ने काटा, उसके बॉडी पे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको स्वेलिंग आ रहा है. व्हाट आई विल से इज, अगर इसने बहुत पाप किया होगा तो ये मर जाएगा. इसका पापों का घड़ा ये भर चुका है.
and the people die and the person dies, and what people think, अरे इसने बहुत पाप किया था, इसके लिए वो मर गया, इसके लिए बाबा बचा नहीं पाए. This is what exactly happens in India. To be honest, ये मेरा एक दोस्त का इंसिडेंट है, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे को वो शेयर किया है, उसके गांव में यह हुआ था, and उसने मेरे को ये शेयर किया, and even he is a rescuer, so that's why. ये सब Next अभी slide. भी होता है। अभी भी होता है. अभी रिसेंट की बात है कि एक बच्चे को स्नेक कोबरा बाइट हुआ था, एंड व्हाट पीपल डिड इज, वो कोबरा को ऐसा कोई तो ऐसा त्रिशूल जैसा उनका कुछ तो था, उससे उन्होंने मारा और वो बच्चे के बाजू में रखा, और वो कोबरा लिटरली वो बच्चे को च्यू कर रहा है, वो और जहर डाल रहा है, और लोगों को क्या लग रहा है कि वो जहर खींच रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता. एंड दैट किड ही डाइड. 2-3 साल का बच्चा था. ये आज भी होता है. ठीक है. People are still not educated about snakes. People are not still educated about anything. Next slide, please. I cannot see anything. हाँ, तो 5 मुंडे वाला कोई तो बोल रहा था, right? Have heard elders says when girls have period, snakes go near snakes. Right? It's all myth. It's all myth. It's all myth. It's all myth. Okay, it's all myth. It never ever related to any of these things what you said. I've never seen anything. और ऐसा कुछ नहीं होता. मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्नेक का कुछ भी ये नहीं है, मिलता जुलता मेल कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो कौन बोल रहा था ना कि 5 मुंडे वाला सांप किसको देखना था? You can see the snake. Fake, right? This is fake. This is all Photoshop. Okay, this is all Photoshopped. Next. मैं मजाक कर रहा हूँ, ये असली है. ये भी असली है. ठीक है. ये फेक नहीं है, असली है. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. ये भी असली है, फेक नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड. But you तो says असली ना में होते before हैं। कि have दो ही head होता है करके. This is the actual photo of the snake. और अगर आपने पीछे देखोगे, next slide. Next slide. It's fake. It's all fake. This is all Photoshop. अभी यहाँ पे तो हमारे चंदे मामा पे दिख रहे हैं. उसको लाइक सांपों ने चेहरा बना के अंदर भी एक चेहरा बना दिया है अभी. मतलब this is all fake. Can you see the original photo on the top left, and you will see the Photoshop ones. ऐसा कुछ नहीं होता. It's all fake. Okay. So next time when you get this photo, don't forget to delete that photo and don't forward it to someone else on WhatsApp. Next slide, please. Wrong message awareness in the society. Next. Where do you find snakes? Can you please read that out so that you can get to know? Cracks in the wall. Under behind the furniture, attic, pile of food, go down inside, vehicle near engine, drainage system, dustbins, and many more places. मेरे को चप्पल के अंदर रेस्क्यू हुआ, जूते के अंदर. This is in the car. Oh my god. और ये हमारे रेस्क्यूअर्स है. The reason rescues है, and the reason why the snakes are over there is because बारिश के टाइम पे और ठंडी के टाइम पे what happens is गर्मी बहुत कम हो जाती है. ठीक है. And snakes need heat, as I said. ठीक है. तो वो लोग गाड़ी के इंजन में जाके बैठ जाते हैं where they can get heat. This is all because of us. Can you see? सांप क्या हालत हुआ है. This is a checkered keelback on the left, and this is a rat. I don't know which snake it is. Can anyone tell me about the snake on the right? A Russell's viper. Yeah, that's right. It's a Russell's viper. Next slide, please. If you spot a snake, what should you do? Next slide. Observe the situation as far as possible. Okay. अगर आपके बिल्डिंग में या सोसाइटी में कभी सांप आता है, what you have to do is observe the situation. You don't have to do anything. आपको situation देखना है. You don't have to be panic and kill the snakes. आपको मारने की जरूरत नहीं है. Eventually there are more snakes going to arrive. Next slide. Become a leader, control the crowd, and keep everyone away from the snake. Yeah, that's the main thing what you have to do. ठीक है. नहीं तो वहां पे एक ना तो एक इंसान ऐसा हो ही जाता है, अरे यार मैं पकड़ेगा. ऐसा कोई भी इंसान अगर आप लोग को कभी दिखे तो उसको बोलना है शाना बन मत, पीछे हो जा. सीधा ये बोल के उसको पीछे करना है. बिकॉज अगर वो बंदे को सांप काटता है, ठीक है,
तो यू नो उसके लिए उसको तो भुगतना ही है, बट साथ ही साथ उसके फैमिली को भुगतना पड़ता है उसके लिए। और अगर आपके वजह से अगर उसको कुछ नहीं हो रहा है तो you may find yourself lucky. Okay. Second, become a leader. Contact the wildlife rescuers. You have to contact the wildlife rescuers, and will be providing you with the helpline number. We'll be providing you with the helpline number, and then you will get you can contact us directly on our NGO helpline number. Whatever your location will be, the rescuers will be will be there on your location. Keep observing the movement of the snake from far. Yes, that's the main thing. ऐसा ना हो कि I have got rescue calls like अरे यहाँ पे मैंने सांप देखा था, यहाँ पे था 3 दिन पहले, यहाँ पे था, देखो ना यहाँ पे, ये कहाँ पे होगा। ऐसा नहीं करना। अगर आपको सांप दिख रहा है, you have to immediately keep an eye on the snake. You have to contact the rescuer, and you have to look at the movement from far away कि कहाँ पे जा रहा है सांप, कहाँ पे बैठा है. That's important. Next. Yes. This is the main thing. Okay. You are not an expert. You are not a rescuer. Okay. Don't even try to rescue a snake. Even if it is a non-venomous snake, अगर जहरीला सांप नहीं है तो भी आपको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या भरोसा, इट्स अ रैट स्नेक, ठीक है, इट्स अ रैट स्नेक। व्हाट इफ आई से इट्स अ रैट स्नेक, ठीक है, आपने मेरे को फोटो भेजा सांप का एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है रैट स्नेक है, हल्का, ठीक है, और आपने को उतने में लगा कि नहीं यार रैट स्नेक ये मैंने इसके बारे में मेरे को बताया था, ये जहरीला सांप नहीं है, और यू गो टू रेस्क्यू द स्नेक, ओके, व्हेन यू गो, आपने उसको टेल पकड़ा या आपने उसको कहां से भी पकड़ा और स्नेक ने अगर गलती से घूम के आंखों पे काट लिया, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू दैट टाइम? Even if it's not gonna kill you, it's definitely gonna injure you a lot. आपकी आंखें चाहिए यार जिंदगी भर के लिए, तो don't ever try to do it. Okay, next, do's and don'ts. Next, moral support. Next, I'll tell it. Next, yeah, stop. So if anyone can take this the photo, that will be good. Okay, और मैं फटाफट बता देता हूँ, अगर किसी को सांप काटता है आपके सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में या ऐसा कुछ, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑब्जर्व द प्लेस वेयर इट द बिटन, ओके, जगह देखने की कहाँ पे काटा है, यू हैव टू सी आर देयर एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग्स, जिसको भी काटा है, ठीक है, अगर मेरे को सांप काटा है या आपको अगर किसी को सांप काटा है तो ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज आप लोग को वो बंदे को डराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यू हैव टू गिव हिम द मॉरल सपोर्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मॉरल सपोर्ट, अरे कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, इवन इफ यू कैन सी द सिम्टम्स लाइक उसका स्वेलिंग आ रही है या उसका ब्लैक हो रहा है, यू हैव टू स्टिल बी द, अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, चल अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल, कुछ नहीं, खाली सपोर्ट करना है उसको, इवन इफ यू सी एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू टेल हिम, यू डोंट हैव टू मेक हिम पैनिक, ओके। सांप का अगर फोटो खींच सकते हो दैट विल बी वेल एंड गुड, बिकॉज वी विल गेट टू नो व्हाट स्नेक इट वाज व्हेन द what snake it was that has bitten you, and हाँ, कभी भी अगर सांप काटता है, ठीक है, तो हाथ के लोकेशन से नीचे ही होना चाहिए, और व्हाट यू कैन डू इज अगर हाथ पे कापे काट लिया, ठीक है, नेवर टाई, अगर आप लोग ने देखा होगा कि जोर से बांधना है एंड देन ब्लेड से कट करना है, दैट्स वेरी रॉन्ग, यू शुड नेवर डू इट, ओके। इनडायरेक्टली व्हाट यू आर डूइंग इज अगर आपने यहाँ पे कहाँ पे बांध दिया, ठीक है, यहाँ पे बांधने को वैसे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इफ यू सी द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, यहाँ पे जो होता है ना बोन, ये होता है डबल बोन होता है, एंड यू हैव अ एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन राइट ओवर देयर, ओके, you got an empty space in between right over there, and this bone is a single bone, so अगर अगर आप लोग को बांधना भी है तो यहाँ पे भी मत बांधना, ना यहाँ पे बांधना, you have to cover the whole hand, जो गर्म पट्टी होती है you have to tie it all over your hand, अगर आपके हाथ वाथ पे काटा, ठीक है, और ऐसा बांधना है कि वो टाइट भी ना हो और लूज भी ना हो, दैट मीन्स आपका ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन टोटली रुक जाएगा, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सर्वाइव, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव टू कट दिस हैंड, उतना हाथ काटना पड़ेगा, so you have to keep this in mind, अगर सांप कहाँ पे काटा तो you have to literally buy bandage everything, not tight, not loose, okay, medium होना चाहिए, आपका blood circulation होना चाहिए but slow होना चाहिए, keep this in your mind. Second thing, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब इतना टाइट बांध देते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं, what you are doing is आपने यहाँ पे काटा, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे टाइट बांधा और यहाँ पे आपने लूज ये कर दिया, ब्लेड से कट कर दिया, ठीक है, सांप का जहर यहाँ से एक वेन से जा रहा था,
यहाँ पे आपने उसके लिए और 4 खोल दिए. You got that? What is the biggest mistake you are doing? And second thing, यहाँ पे टाइट बांध के कुछ मतलब नहीं है, मैंने बोला because ये आपका डबल बोन होता है. This is not a single bone which is totally going to block that. So आपका जो जहर है, सांप का जो वेनम है, जो आपके एक नस से जा रहा था, वो आगे जाके आपने और 4 नस खोल दिया उसके लिए, तो वो और 4 नस से अंदर जा रहा है. आई समझा? केम अक्रॉस पोस्ट, उसमें ऐसा दिया हुआ था कि पता चलेगा स्नेक बाइट से कि वो वेनमस है कि नहीं वेनमस है. अगर वेनमस होगा तो वो 2 फैंग्स आपकी स्किन पे आएगा और That's very wrong. ठीक है, that's very wrong. I'll give you an incident. मेरे दोस्त करके है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको जब भी कोबरा बाइट हुआ था 2020 जून 2015, ठीक है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड इज माय, मतलब हम लोग बचपन से साथ में. एंड उसको जब भी स्नेक बाइट हुआ था, उसको यहाँ पे था, ठीक है, और एक ही दांत उसको रेस्क्यू के टाइम पे लगा था. एक दांत लगा, तो मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये बोलूं अरे एक ही दांत लगा. व्हाट विल यू से, यू नो, ठीक है, आई एम अ रेस्क्यू, आई नो इट्स अ कोबरा, मेरे को एक दांत काटा है, एंड आई विल बी लाइक एक दांत काटा है, एंड व्हाट विल यू थिंक, अरे एक दांत है मतलब जहरीला सांप नहीं है. You should never ever think that you should never ever go on the bite marks. You should never identify the snake on the bite marks. That's very wrong. ओके. क्योंकि सांप जब भी काटता है तो डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे उसने काटा तो यहाँ पे वो पूरा खोल के काटेगा, उसको मेरे को 2 दांत तो मिलेंगे और उसके जो पीछे के दांत है वो भी मिलेंगे, ठीक है. और अगर वही मेरे को यहाँ पे कहाँ पे काटा तो एच ओवर हियर, व्हाट विल यू से, उसका मुंह यहाँ पे कहाँ पे काटा, एक ही दांत लगेगा या ऐसा स्क्रैच आएगा. ऐसे भी बाइट केसेस है जो सिर्फ स्क्रैच लाइन है. ओके, सो बाइट्स देख के जज करना इज नहीं, नॉट. इट्स नॉट एट ऑल राइट, इट्स वेरी रॉन्ग, यू शुड नेवर डू इट. Okay, the best thing what you can do is you have to go to the hospital. You don't have to rush in the hospital. आराम से जाना है, गाड़ी में बैठ के जाना है, ठीक है. और वो टाइम पे कुछ नशा पानी नहीं करना, ठीक है. जो भी सिगरेट दारू whatever जो भी होता है, you should never do it because उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है. और हाँ, अगर आप लोगों ने कभी किसी को देखा कि इंसान दारू पिया हुआ है और वो सांप पकड़ने के लिए जा रहा है, या आपके इधर कोई रेस्क्यूअर आया है एंड ही इज ड्रंक, यू शुड डायरेक्टली टेल हिम गो. उसको कुछ भी बोल के वहां से भगा देना, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने दारू पिया हुआ है एंड इफ योर बॉडी कंटेन्स अल्कोहल, ओके, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू रेस्क्यू अ स्नेक, अगर गलती से भी वो सांप ने काटा, वेनम के अपना अल्कोहल कंटेंट होने के कारण आप जो वेनम होता है वो डबल फास्ट हो जाएगा आपके बॉडी में, डबल एक्टिवेट होगा. सेकेंड थिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है व्हेन यू आर ड्रंक. वहां पे एक सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड थिंग इज, आपको तब तक एंटी वेनम का इंजेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आपके बॉडी से पूरा अल्कोहल नहीं निकल जाता. तो 100% there are 99 chances that you are going to die. So keep this in your mind. Next slide, please. So this is the helpline number. Okay, you can check with the helpline number, or this will be a good thing for you. You can note down the helpline number, and regarding any queries, अगर आप लोग को मेरे से कनेक्ट होना है, and if you want to get connected with me and you want my help in any kind of rescues or get anything, any kind of wildlife rescue, you can directly contact me on my Instagram. You can contact me on my personal number. No, I won't give my personal number, I'm sorry, but Instagram पे मिल जाएगा. So हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है स्नेक्स के बारे में, if you want any kind of knowledge, और अगर आप लोग को फिर भी अगर कुछ डाउट था इसमें, you can contact me over there. My Instagram account is psy_adit. PSY, P as in Papa, S as in Sierra, Y as in Yankee, _ Adit, A as in Alpha, D as in Delta, I as in India, T as in Tango. Okay. Next slide, please. Any questions? Any questions or comments you would like to give or you would like to ask? Anything? What is your YouTube channel called? YouTube channel, it's Adit Bhagwat. I've just started it. मेरे सिर्फ 2 videos है उसमें. That's it. I'll go and subscribe. Thank you. Any kind of queries or questions you want to ask? कुछ तो होगा ऐसा कि आप लोगों को अभी भी डाउट है, कुछ तो. I'll give you 5 minutes. Next 5 minutes. Yes. Some people say कि उन्होंने like सांप के बॉडी में से पूरा जहर निकाल दिया है and it will not harm मतलब others people. So that is true that the whole poison can come out from the snake's body.
venom. I told you snakes are not poisonous, snakes are venomous. Sorry, I mean Yes, venom. yes. सेकेंड थिंग, मतलब इंसान के बॉडी से निकलती है या सांप के बॉडी से निकलती है? नहीं, सांप सांप के बॉडी से। ओके, तो सांप का बॉडी में जहर नहीं होता, सांप का जो जहर होता है वो यहाँ पे होता है, उसको वेनम, जो दांत होते हैं, वेनम फैंग्स होता है, फैंग्स के ऊपर होता है जहर की थैली, ठीक है, विष की थैली यहाँ पे होती है, और वहां पे उसका जो ये होता है वेनम होता है वो होता है, ठीक है। एंड जब भी वो दबा के उसका पूरा निकालते हैं, if I want to join the what will be the process, you can contact me on my Instagram, I'll tell you over there everything regarding this. Yeah, so जब भी सांप का जहर दबा के निकालता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका जहर पूरा खत्म हो चुका है, सांप जहर वापस बनाना चालू करता है, बिकॉज वो उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, वो एक उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उसी चीज से शिकार पकड़ सकता है, तो 24 आवर्स के बाद उसका वापस बनना चालू हो जाता है। एंड यू शुड नेवर थिंक कि इस इंसान पे कभी भरोसा करना मत कि इस इंसान ने बोला कि भाई इसका पूरा निकाल जाए तो उसने निकाल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अंदर वापस बनना चालू होता है, जैसे वो वेस्ट हो जाता है निकल जाता है, वो बनना चालू हो जाता है। रियलिटी शोज में देखे थे, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। रियलिटी शोज में पहली बात जो भी स्नेक्स यूज होते हैं आर नॉट एट ऑल वेनेमस स्नेक्स, ऑल द स्नेक्स आर नॉन वेनेमस स्नेक्स। द रीजन इज अगर उन गलती से भी कुछ किसी को बाइट होता है तो वो पूरा रियलिटी शो बंद हो जाएगा जगह पे, और देयर विल बी अ केस फाइल्स अगेंस्ट इट। एंड सेकंड थिंग, अगर किसी को बाइट नहीं भी हुआ, ठीक है, तो भी उस रियलिटी शो के ऊपर केस होगा किस चीज का, मर्डर वेपन यूज करने का, बिकॉज इट्स अ वेनेमस स्पीशीज, इट कैन किल अ ह्यूमन एंड इट्स कॉल्ड अ मर्डर वेपन। यू गॉट दैट? यस, थैंक यू सो मच। Yeah. Any more queries? Any more question? Poison से स्नेक का बोटॉक्स कलर हाथ ट्रीटमेंट को होता लगता है? है ना, स्नेक का कलर, बिकॉज हाँ वन स्कूल में जब वो कोबरा, एक कोबरा नहीं था, मुझे पता नहीं वो स्नेक कौन सा था, बट वो हमको मतलब टच करने को दिया था, दैट कलर वाज सो गुड ना, मतलब वो कलर लगता है, सब स्नेक्स के कलर लगते हैं। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा। क्वेश्चन इज कि कलर उनके लगते हैं क्या हाथ में, लाइक इट्स सो नहीं नहीं स्टिकी नहीं बट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं I'll show you a video, रिलीजिंग का वीडियो है, ऐसे तो बहुत वीडियोस है, बट आई गेस वाइन का होगा मेरे पास, एक सेकंड। या सो दिस इज ऑफ माथेरान, तो अगर इसमें मैं छोड़ रहा हूँ उसको, मेरे हाथ पे उसका कुछ कलर नहीं लग रहा है, ठीक है, कैन यू सी? कुछ कलर नहीं लगता, कुछ नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि हाथ पे आपके कलर लग रहा है, वो शायद गटर में गया होगा और वो गटर का कलर आपके हाथ में लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए दैट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एनी मोर क्वेरीज? एनी पर्सन हु इज स्नेक बिटन, who snake bitten is said to avoid sleep for one night, but ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। whenever you are bitten by any venomous snake, आपको eventually आपको नींद आ जाती है। venom is a high potential protein which your body cannot digest, ठीक है, और आपको अगर उसमें न्यूरोटॉक्सिक venom है तो आपको बेहोशी आ जाती है। जब भी मेरे दोस्त को 2015 में जब बाइट हुआ था, 20 जून 2015 उसको बाइट हुआ, 5 बजे उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, उसको हुआ था 11 बजे बाइट, उसने पूरा विल पावर पे खींचा, ठीक है। जब वो अंदर गया, जब उसका पूरा एक्चुअल ट्रीटमेंट चालू हुआ, वो बंदा सो गया और वो उठा डायरेक्ट 23 तारीख को, और फिर सो गया, फिर 25 तारीख को उठा। मतलब जब भी आपके बॉडी में ज्यादा करके न्यूरोटॉक्सिक वेनम जब जाता है ना बॉडी में, तो आपका बॉडी पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता। Why is king cobra named cobra if it doesn't belong to? I said you, I don't know the answer why it is called king cobra. I'll do a research. If you want to get the answer, you can contact me over there on my Instagram, which is psy_Rajat. I'll tell you over there. I'll do some research on it and I'll tell you. If the fangs are removed, then do they grow back? Yes, they grow back. They have fangs lying behind. सर बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है क्या स्नेक से? मेरे को नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। Hello. Yes, ma'am. We'll have one last question and then
because then we have another program coming up. Okay, no issues. Yeah. Any other question? Any other question? If you have questions, you can contact me on Instagram account and you can ask me over there. I'm ready to answer. Okay. Thank you so much, Bhagesh, for that wonderful Yes, ma'am. lecture. Thank you. I don't think anyone has spoken so lovingly about snakes. We have heard people calling cats cute, dogs cute, snakes But beautiful for the I first find time. I find snakes cute. True, true. It shows your passion for the entire work that you're doing and the amazing work that you're doing. Yeah. I'm sure it's a wonderful job and a very thankless job. And But here, we want to thank you so much for taking the time out. I know that you have had an extremely busy schedule. yeah, busy schedule. Thank you so much. On behalf of Ek Bharat Shresh Bharat and the ES committee of Dr. BMN College of Home Science, I would also like to thank Anchal College principal and the students for having attended it. Dr. Rushali Datar, who was with us over here, my committee members, Nitin sir for the entire arrangements of the technical. Anytime Nitin sir is like the right man of the college. So Nitin sir is always there. Sharda ma'am for all the work done. Most importantly, Mala ma'am for allowing us to have your session. I'm sure whenever you are available, you will accept our invitation to come and again give a lecture. Sure, would be more than I'll happy. definitely do it, but not for next 1 or 2 months possibly. Yes. I get it. I Because get it. I'm not in Mumbai, so for now, so I don't think so I will be doing it. Yeah. Thank you so much. Thank you, Anytime. everyone. Thank you. Yeah, bye-bye. Bye.